हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल स्टोरी ऑफ ऑल स्पेस पे। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर जो कि लखापीर दादा का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं सारा व्यू। दोस्तों, हम फाइनली लखापीर दादा के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लखापीर दादा का बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, तो बताएंगे, हम अंदर जाने के बाद दर्शन करेंगे और आप भी दर्शन कीजिए और फिर आपको बताएंगे लखापीर दादा के चमत्कार और उनसे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारी वीडियो की एंड तक, स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की ओर। दोस्तों, हमने आपको लखापीर दादाजी के दर्शन करवा लिए हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, गांव के लोग मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं और लखापीर दादा के चमत्कार और उनसे जुड़े कुछ रहस्यमय जो बातें हैं और उनके इतिहास के बारे में यहाँ के लोगों से बात करते हैं। संतान तो શિવની ભક્તિ કરી બુઢી છે બાજ કે મોગે આલો કે ધન થી દીધું માલ થી દીધું મિલકત થી દીધું ઘણો છે બધું શેર માટે હોય છે મને દીકરો આલો તત્તા એક ને બે મોટા હાથો અને નાના લખોપી લખાપીરનું નામ છે અમારા બાળના જગદીશ નામ છે પોતે કે 32 વર્ષની ઉંમર થાય છે અને ગાયની વારી તડકી સરગમ લઈ દે લખાપીર 32 વર્ષની ઉંમરમાં ગાયની વારી તો અહીંયા ભગવાન મળ્યા હતા લોણી નદી ચિત્રવાળા ગમ કર્યા હતા ગમ લઈને આવતા હતા બસ બીજા કાઢો હવે તો ઘરતો બળ લાવવું ત્રણ ગામમાં ક્યાં માટે બધું હતો ઉડે કે મારે ક્યાં મળે ઉડે કે મારે ક્યાં મળે આ પોતે ભગવાનને ભોજે ને લોકો કે 15 દી પહેલો મરી ગયો છૂટકો હતો ને કે 15 દી ચેડી ગયો પણ અત્યારે મોચો ને ઓળખું પોતાને ભેટો છો હેંગોળા પીવું ખબર
આપણું ધારો ચોર એવું કે વાવ થોડો રાજ પેલા ગોય આ એક જોયું બની ગયું એમ કેવું કે આ મોટા ચેડા દાદા હતી ને લઈને જાય ભાઈ હરદીને સાંભળું પાડી દીધું ટોપલા ભર્યા કે પાછા નખો પાકડમાં ખાલ બાટી મારીને 3 શબ્દ પાછા ઝાડતા થઈ ગયા એમ બોલે પીરે બોલે હાલ કાગડી ગયા એવું કાગડી લે ગયા બીજા એટલે કે પેલી કીધું કે હવે આપણે કોઈ દીધું નથી તમે જમો ગાડી દીધી બંધ કોઈ દીધો કે ખાચે કોઈ કઈ મજા કઈ વાત નથી તો કે મારે અહીંયા આવ્યો જો હોય વતન લીધા એમ બોલે પીરે વતન આવ્યા હતા શ્રાવણ મહિનો હતો સંત આયા મોટા હાથો મારા લખો બી વાવ મોહ વેચ્યા વાહ મોટા વેચ્યા તાકે બાપુ હેડો આવે અમારી ઘેર કે આ તારું ઘર છે ખૂબ મજા કરી તાકે પ્રસાદ તમારે લેવો પડે હો જે હોય યાદ કર દે નવો રોહડું બનાવી મત ગંદી દુકાને બીજ ત્રી જાય મત આ ઘરમાં હોય યાદ કર દે ને કે પાછું આવી દૂધનું ગાય લઈને આયા પૂજ્યું પથ્થરમાં પૂજ્યું તારે આવી ગયું ઘોડ્યું ઘોડે પીધું ગરમી પીને આડું મળ્યું લ્યો કે પીધું આગળ દીધો મોટા હતા બોય મૂકતા ગયું પણ જો કે પી ગયા આધાર પીછું કે મને બાલુડા વચન સોડા કે લેબડો ભાડું ચેલડો ભાડું ડાબલો પાત્ર ભાડું ભાવ દે વારી વારી છંદા હું મારા સાહેબ શરતો આગળ ના કે મારા ભલા મતી આવે એ કઈ ભાવતું નથી એમ પૂછ્યું નગદી કે બાલુડા મને વચન સોડા ગરુડી ભાડું કઈ હરનો દ્વાર દલિત દ્વારકા બે ઘોડીઓ છોડે ને પીડીની કોન્સ્ટિટ્યુ પાછી છે લીલુડી ઘોડીની કોન્સ્ટિટ્યુ આખી આમ છે તમારે હાથ કરી દા કે હાડા 25 વર્ષની ઉંમરમાં હતું ગાય ગાય ફોર્મ આવી જાય દોખે તારી પૂરી મેન્ટેરિયા ચાલશે તો તારા કામમાં 30 રૂપિયા ફીસ થાય એ તો ભાઈ સારું એ આ બેઠો ખુરશી માથે ઈ અને આડો ઈ દાદાના આ પોતરા આ બે બરાબર ઉભા છે સપના માં જીતો તો આ કાફો છે લખા પીલું કે મને સમાધિ દેતો આ હાલી બીજે ધાર બટાજી ભાઈ એમ બેસે રોવા રોવા એટલે કહું બો પીવી આપેલા બાપડા પ્રજાપત ને અડિયા ગયો હોય આગળ તો એવું ને એટલે કે જાગરે શરણાચરણે નિયાણે ભંડારે અમારે ભંડારે તમારે મોટી નાગરાઈ ન મળ્યા અમારે સેવા કોઈ છે અંદીસો મોની ની ને અગ્નિ સંસ્કાર વાત વાત હમણાં આજી ગુજરાત બરાબર છે મો પડી હોટલી કોકડ કાઢ્યો હોય આ મંદર કરનામ કે ફલાણા ક્ષેત્રમાં 3 વર્ષ ઠોઠો વાઢેલ પીડ્યો ઊંધીનું એ ખબર શું હોય તો દાદો પછી હાથ લાખો કરોડ પડ્યા છે જમલીમાં પણ હવા ગદા હાથ જેની પાસે અમે જીવા વર્તાય છે વિરાટમાં એની કિંમત આ સવારે આપી जय हो दादा जय लगा दादा लोग यहाँ पर मौजूद थे तो उनका बहुत सारा सपोर्ट मिला हमें और मिलकर इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग मौजूद थे यहाँ गांव के लोग जो मौजूद थे उन्होंने बताया लखापीर दादा के इतिहास के बारे में उनसे जुड़े कुछ रहस्यमय और उनके चमत्कारों के बारे में तो दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर जो कि 17वीं शताब्दी के शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिताजी सादुर जी गोहिल और माताजी जो कि जसोमा उनको पुत्र प्राप्ति ना होने की वजह से उन्होंने जो कि पिताजी सादुर जी गोहिल थे उन्होंने शिव जी की आराधना की
और शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर कहा कि चलो मेरे आशीर्वाद से आपको 2 पुत्र प्राप्ति होगी, 2 संतान होंगे। और फिर दोस्तों माता जसोमा है उनसे उन्होंने यानी कि जो कि बड़े भाई का नाम था हाजाजी गोहिल और छोटे भाई लखोजी, यानी कि 2 पुत्र प्राप्ति हुई, 2 संतान हुए। और उसके बाद उनका हेंगुल जी नाथ यानी कि हेंगुल जी पीर उनसे मुलाकात हुई और फिर लखापीर दादा ने उनको फिर उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिए और उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। और फिर हेंगुल जी दादा ने उनको शिष्य के तौर पर स्वीकार किया और उसके बाद उनके आशीर्वाद बने रहे। और दोस्तों उनको उस वक्त से ये याद आया, उनको याद दिलाई हेंगुल पीर ने कि उनका जन्म इस युग में क्यों हुआ है, उनका क्या ध्येय है, क्या करना है। दोस्तों इस सारे जानकारियाँ उनको हेंगुल पीर जी से मिलने के बाद मिली और उनको ये पता चला। तब से दोस्तों उन्होंने एक फिर अभियान चलाया दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लोग छुआछूत का जो कि हुआ करता है, ऊंच नीच के भेदभाव रखा करते थे दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चले। और दोस्तों ये सारा जो कि ऊंच नीच का भेदभाव है वो मिटाने के लिए लखापीर दादा ने बहुत संघर्ष किया और भजन मंडली में जाया करते थे दोस्तों। यहाँ पर धीरे धीरे फिर सारे गांव के आसपास के बहुत सारे लोगों को पता चला कि ये पीर है लखापीर दादाजी, जो कि बहुत चमत्कार देखने को मिले गांव के लोगों को। और फिर धीरे धीरे ये बात है जो कि बहुत ही गांव तक, यहाँ के गांव तक सीमित ना रहते हुए बहुत सारे आसपास के गांवों को लोगों को भी पता चली दोस्तों। लोग यहाँ लखापीर दादा के दर्शन करने के लिए, उनके चरण छूने के लिए आया करते थे। और ये बात जो कि सिंध प्रांत में दावल शाह तक ये बात गई और उनसे ये बात सहन ना हुई कि ये हिंद प्रांत में ये ऐसा लखापीर नामक एक जो कि व्यक्ति है, लखापीर है, उनकी इतनी सारी ये लोग इतना मानते हैं उनको, वो बात उनसे सहन ना हुई। फिर उन्होंने उनकी फौज के साथ दोस्तों यहाँ पर आक्रमण कर दिया, जो कि यहाँ पे लखापीर दादा थे, उनके साथ साथ गोहिल परिवार के कई भाई थे। और फिर यहाँ पर उनका आक्रमण हुआ तो वो दोस्तों सर सेनापति उस वक्त उनकी जो सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोहिल लखापीर दादाजी, उनके साथ गोहिल परिवार के अन्य लोग भी शामिल हुए और फिर उनसे युद्ध किया, जो कि दावल शाह के साथ युद्ध करते करते उन्होंने गौ माता को बचाया, जो कि गौ माता को लेने के लिए, उनका हरण करने के लिए आए थे वो लोग। उनसे मुकाबला किया, उनसे युद्ध किया और फिर दावल शाह की सेना लड़ते लड़ते यहाँ पर खत्म हो चुकी थी दोस्तों। और फिर लड़ते लड़ते कई हमारे भी यहाँ के लोग भी, बहुत सारे लोग जवान शहीद हो गए गौ माता के लिए। और अंत में जो कि ये युद्ध भूमि जो कि दावल शाह है वो छोड़कर भागना चाहते थे, फिर लखापीर दादा ने उनका पीछा किया और अंत में दावल शाह को पराजित किया और उनका वध किया दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे लखापीर दादा के जो कि चमत्कार हैं बहुत सारे, उसके अलावा भी बहुत चमत्कार देखने को मिले हैं दोस्तों। और ऐसे ही यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, लोग आज भी दादा के यहाँ दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके चरण छूने के लिए आया करते हैं। और बहुत ही बड़ी भीड़ लगी रहती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दीपावली के दूसरे दिन जबकि नए साल की शुरुआत होती है और आषाढ़ी दूज यानी कि आषाढ़ी बीज के दिन यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं दादा के चरण छूने के लिए और उनके आशीर्वाद लेने के लिए आया करते हैं। तो दोस्तों और इनसे जुड़े और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो हम बाद में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ की ओर, मगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर जो कि हिंगोला पीर जो कि दादा को मिले थे और दादा लखापीर दादा ने जो कि उनको गुरु के तौर पर स्वागत किया, गुरु के तौर पर जो कि उन्होंने उनको स्वीकार किया था, वो जगह हम आपको दिखाते हैं।
जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो कि हिंगोला पीर जी की जो वो जगह है जो हम आपको दिखाएंगे, तो ये फाइनली वो जगह है जहाँ पर चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इस जगह पर यहाँ पर जो कि हिंगोला पीर है उनके चरण की कुछ निशानियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों यहाँ पर जो कि लखापीर दादा ने हिंगोला पीर को जो कि उनके गुरु के तौर पर स्वीकार किया था दोस्तों, और लखापीर दादा और उनके बड़े भाई यहाँ पर हिंगोला पीर जी से मिले थे, और उस वक्त उन्होंने जो कि गुरु हिंगोला पीर है उनको खाना खिलाया था। उसके बाद जो कि वोमेन के जरिए, यानी कि वो खाना जो हिंगोला पीर ने खाया था उसको बाहर निकल के फिर उसको जो कि लखापीर दादा के बड़े भाई थे जो कि आजाजी नाम हुआ था, उसको आजाजी को पिलाया, तो उन्होंने नहीं पिया था। और फिर बाद में लखापीर दादा को कहा कि भाई आप पी लीजिए, और लखापीर दादा ने पी लिया। तो दोस्तों तब से वो पीर कहलाए, यानी कि यहाँ हिंगोला पीर ने जो पाया था वो खाना वापस वोमेन करके वो पीने के बाद पीर कहलाए। और तब से यहाँ आज तक लोग आसपास के बहुत ज़्यादा गांव के आसपास के सारे गांव के लोग आज भी लखापीर दादा को पूजते हैं और मानते हैं, उनका चरण छूने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए और हिंगोला पीर के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। तो ये दोस्तों हमने ये जगह आपको दिखा दी है और चलते हैं समली बेट की, और वहाँ जाने के बाद हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंदर।
हम आ चुके हैं समली बेट, जो कि एसारा में स्थित है वो जगह, जो कि लखापीर दादा के मंदिर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये जगह जो कि लखापीर दादा के कुछ रहस्य, उनके चमत्कार और उनसे जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी बातें जो कि समली बेट से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये वो जगह है जो कि समली बेट के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो कि उस वक्त वहाँ हमने आपको पहले मंदिर बताया लखापीर दादा का, यहाँ पर लखापीर दादा की समाधि भी बनी हुई है। तो दोस्तों इस मंदिर से यहाँ की कुछ बातें, जो इस जगह की बातें, कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो लखापीर दादा से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर हुआ यूँ था कि जो डावल शाह है उन्हों से उस वक्त जो कि लखापीर दादा और उनके साथियों द्वारा उनसे युद्ध किया गया था, युद्ध लड़ा हुआ था दोस्तों। तब एक राजपूत क्षत्रिय का एक धर्म है कि अपने धर्म के लिए और गौ माता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, लखापीर दादा ने गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और दोस्तों यहाँ पर जो कि ये पंचकेड़ा जगह है हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर दोस्तों लखापीर दादा जो कि उस वक्त यहाँ पर एक रावत जी प्रजापति हुआ करते थे दोस्तों। उनके स्वप्न में आए लखापीर दादा और उन्होंने कहा कि भी मैं लखापीर दादा जो कि मेरी समाधि दी जाए वहाँ पर। और उस वक्त उन्होंने सारे गांव के लोगों को कहा कि लखापीर दादा का जो धड़ है वो इस जगह पर पड़ा है। तो दोस्तों वहाँ पर गांव के लोगों ने उस वक्त उनकी ना मानी और फिर लखापीर दादा का जो धड़ था उनके अग्नि संस्कार कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद फिर से स्वप्न आया, रावत जी जो कि प्रजापति थे उनको स्वप्न आया और फिर बताया दोस्तों, दूसरी बार बताया कि आपने जो मेरा अग्नि संस्कार कर दिए तो मेरा दाया हाथ है वो यहाँ पर पंचकेड़ा, ये जगह पंचकेड़ा वाली जगह है। तो दोस्तों यहाँ पर उनका हाथ जो पड़ा हुआ था तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर जाइए और वो हाथ लेकर वहाँ पर जाइए खिमाणावास और मेरी समाधि दीजिए। तो दोस्तों फिर रावत जी ने वो सारी बात जो कि गांव के लोगों को बताई और फिर गांव के कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलिए दूसरी बार आपको स्वप्न आया है और लखापीर दादा ने ये बात कही है तो हम देखते हैं, चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि क्या सच में ये है। तो दोस्तों उस वक्त वो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर आए और ये वो जो युद्ध भूमि थी यहाँ पर जो कि डावल शाह के साथ लखापीर दादा के दादा का जो युद्ध हुआ था उनके साथ, तो उस वक्त यहाँ पर लाशों का ढेर पड़ा हुआ था, बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। तो दोस्तों उनमें से लखापीर दादा की जो लाश है उनका हाथ जो यहाँ पंचकेड़ा की जगह पर पड़ा हुआ था उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। पर दादा ने स्वप्न में कहा था कि भाई मेरा हाथ है वहाँ। तो यहाँ पर लोग आए और देखा कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है। तो लोग फिर सोचने लगे कि इनमें से लखापीर दादा का हाथ कौन सा है। फिर वहां से आवाज आई, लखापीर दादा की जो आवाज आई कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जो कि उन लाशों से थोड़ी दूरी पर लखापीर दादा का जो हाथ है वो पड़ा हुआ था। और दोस्तों आगे बढ़ते ही पंचकेड़ा की जगह है उसमें उनका हाथ फंसा हुआ था और दोस्तों उस हाथ की 5 उंगलियों पे दीप जलते हुए थे। दोस्तों उस वक्त गांव के लोगों ने पहचान लिया कि ये लखापीर दादा का जो कि हाथ है, वो हाथ लेकर वहां पर गए और उस वक्त उन्होंने वहां पर समाधि दी।
तो दोस्तों और भी बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं जो इस शमली बेट नाम की जगह है उससे जुड़ी हुई है। और ये एक यहाँ पर गौ माता है जो कि उस वक्त जो युद्ध हुआ था उस वक्त लखापीर दादा ने जो कि उस गौ माता को बचाया था, उन गौ माताओं का जो ये वंशज है, एक छोटी गौ माता है। चलिए दर्शन करवा लेते हैं हम आपको। चलिए दोस्तों, तो फिर गौ माता का दर्शन कर लिए हैं तो वो पंचकेड़ा वाली जगह है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है वो पंचकेड़ा वाली जगह, दिखाइए भाई। ये है वो पंचकेड़ा में से एक ये है, और एक यहाँ पर भी बना हुआ है जिस पेड़ों की आज भी पूजा करते हैं लोग। और यहाँ पर सामने भी बना हुआ है दोस्तों। चलिए दिख रहा है सामने दोस्तों। और एक यहाँ पर दोस्तों ये सारी जगह है। यहाँ आने के बाद बहुत दिल को सुकून मिला दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है। आप भी अगर आना चाहें तो दोस्तों वाव से, जो कि गुजरात के बनासकांठा जिला का वाव है, वाव से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर वो लखापीर दादा का मंदिर बना हुआ है। और वहाँ पर समाधि भी है दादा की। और वहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ये जो कि शमली बेट है वो स्थित है दोस्तों। अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। और आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब हमारे हौसले को और बुलंद बनाती है और दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियो देने के लिए हमें प्रेरित करती है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय लखापीर दादा की।